گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ظلم تشدد کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ظلم تشدد کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ظلم تشدد کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ظلم تشدد کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا ظلم تیرے دود سے انقلاب آئے گا ظلم تیرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا 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 پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ارشد شریف زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کس دھرتی سے رشتہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ارشد سے ہے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس دھرتی سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ارشد سے ہے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا 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 ایمان ایمان ادھر اس کا پیچھے بندی ہے پیچھے یہ جو چار بھائی ذمہ دار ہے ہمارا بھائی ہمیں بھی مارتے ہیں ہمیں بھی مارتے ہیں ہم بھی نعشہ اٹھائے ہم نعشہ اٹھانے کے لیے گھر پہ مہربانی کریں پاکستان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ارشد شریف زندہ باد ارشد شریف زندہ باد پاکستان 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 زندہ باد
اندر جو ہے وہ پیشنٹس ہیں، تو ہاسپٹل مینجمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک تو یہاں پہ ایمرجنسی کیسز آتے ہیں، ارشد صاحب کی فیملی اندر جا چکی ہے، آپ سب لوگ آئے ہیں، لیکن ہم سب لوگ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ گیٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں، نعرے لگائیں، جذبات کے ساتھ کریں، لیکن ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تاکہ تھوڑا پیچھے پیچھے تھوڑا آگے ہو جاؤ. ہیلو کے سارے دوستوں سے درخواست ہے، پیشنٹس کے لیے ہم مشکلات نہیں کھڑے کرنا چاہتے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، نہ ہی کوئی اگر ایمرجنسی میں گاڑی آ رہی ہے تو ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. اس لیے سارے دوست جو ہے وہ اس طرف آگے آ جائیں، آپ یہاں پہ موجود رہیں، لیکن ہم کسی کے لیے بھی مشکلات جو ہے وہ پیشنٹس کے لیے کھڑی نہیں کریں گے. آپ یہاں پہ دوست رکیں، میں باقی دوستوں کو بھی ریکویسٹ کر کے یہاں لاتا ہوں، یہاں پہ رکیں، ہم سب رکیں گے یہاں پہ جب تک اندر پروسیس ہو رہا ہے، ہم یہاں پہ رکیں گے. ارشد بھائی کے لیے، ان کی فیملی سے ظاہر یکجہتی کے لیے، ارشد شریف صاحب کو ضرور ان کی روح یہ سن رہی ہوگی، ان کو ہم بتانے کے لیے کہ وہ ان کو خاموش کروایا گیا ہے، ان کی آواز خاموش نہیں ہو سکتی. ارشد صاحب کو خاموش کرا دیا گیا ہے، ان کا مشن خاموش نہیں ہو سکتا. جس طرح سے ان کے گاڑی کو راستہ جیسے خاکی اور تابوت کو جکڑا گیا ہے، راستہ دے گاڑیوں میں راستہ دے دیں، ایمبولینس کا راستہ دے دیں بھائی جان. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، نیچے ہو جائے تھوڑا سا، خالی جگہ نیچے ہو جائیں. خالی جگہ ہے بس ٹھیک ہے. سارے دوست ادھر نیچے آ جائیں، جگہ ہے اس سائڈ پر آ جائیں، تھوڑے سے میں واپس لے کر یہاں پر اور بھی صحافی موجود ہیں. اس نے کہا کیا کیا جائے، میں نے کہا دیکھو نہیں جانے دے رہے. یار عثمان صاحب پیچھے آ جائیں، اس سائڈ پر آ جائیں تاکہ یہ پیشنٹس کے لیے دروازہ چھوڑ دیں. پیشنٹ کو الاؤ نہیں یہاں سے، کیا پیشنٹس کو الاؤ نہیں بند ہی کر دیں، وہاں پیچھے سے بھیجیں. ویسے ان کا الگ ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہاں بالکل بند کر دیں، تالا لگ گیا. ویسے چلیں سارے دوست اس سائڈ پر آ جائیں، سائڈ پر آ جائیں تاکہ اندر نا وہ پیشنٹ بھی ہیں ہماری ناروں سے. السلام علیکم، سارے دوست آگے چلیں، باقی سے درخواست کرتے ہیں. کون سا میرا بھیج نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے بھائی 2 منٹ بغیرت کی وجہ سے یہ بندہ چاہیے، اس کی فیملی ہے باہر ساری میڈیا، اس بغیرت کو وہ فلو پٹ بہن چور گنچوں والا اس کا کچھ ہوا ہے. اس باسکٹ کو کسی نے جنازے میں پوچھ نہیں دی. یہ تو ملازم ہے بیچاروں کی بات کے ہم سے چل رہی ہے. یہ بغیرت تو چاہتے ہیں گلو پٹ کہ ہمیں داروں کے ساتھ لڑے، یہ میں لڑوا رہے. اور کیا کرے گی، بس ہوگی. ادھر سامنے ادھر میں کافی دیر سے آیا ہوں. فیضان شکیل بھائی یہ سامنے کھڑے ہیں، صدیق جان کے پیچھے.
اب یہاں پر ایک اور کمیشن بن جائے گا, اس کے کیا ٹیموات ہوتے ہیں پتہ نہیں. یہ کمیشن کس طرح کام کرے گا؟ یہ کمیشن وہاں پر ان لوگوں کو کیا پاکستان بلا سکے گا جنہوں نے شروع کیا, جنہوں نے ناکہ لگایا, جن پر مختلف طرح کے الزامات ہیں؟ جب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ سکیں گی تو کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا پاکستان میں بہت مسئلہ آ جائے. تیر کمان سے نہیں تو کہاں پر ہے کہاں پر اب اس ٹائم ہی سو رہے ہو تم لوگ, یہ ٹائم ہے نکلنے کا. ہم لوگ آل دا وے یہاں سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے جی پیچھے لائٹ ہے, یہ جب آتی ہے تو تھوڑا بائک کی طرف لائٹ میرے کیمرے کا لینس بائک کی طرف آئے نا جلے اسے باہر کلسا گیڑ پرانے 3,12,000 جتنے بھی لوگ ہیں انہوں کی ریکویسٹ کریں کہ اسپتال کا منہ ذرا آگے چھوڑ دیں, کیونکہ اور بھی پیشنٹ آتے ہیں, اور سب جو سینئر بندے ہیں نا 5-6-7 بندے وہ بھی باہر بیٹھے ہیں. ادھر سے تو بند کر پیشنٹس کو, دوسرا گیٹ کھلا پیشنٹس کو. دوسری بات یہ کہ ناروں سے روک دی اس لیے کہ ادھر نعرے نہ لگے, مریض ڈسٹرب نہ ہو. یہ چیزیں اور دوسرا جو سینئر بندے ہیں نا وہ بھی باہر بیٹھے, اس کو بھی اندر نہیں جانے دیتے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ چلے جائیں میں اپنے حق کے لیے اپنی جان دی, وہ اپنی موت سے نہیں بھاگا تھا, وہ اس طرح کی ظالم موت سے بھاگا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. اس کے لیے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. سنا ہے شہر کی خاموشیوں پر قہر ٹوٹے گا, سنا ہے شہر کی خاموشیوں پر قہر ٹوٹے گا, کسی کا جسم بولے گا, کسی کی ذات بولے گی. تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے؟
तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो मौत बोलेगी। दुनिया में आए हैं तो जानो तो सभी को है एक दिन, फर्क तो पड़ता है तुम किसके साथ खड़े थे, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो जान सलामत रहती है। अरशद शरीफ, हम शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम्हें जिन लोगों ने यहाँ से निकाला था कि बोलो नहीं, उन्होंने तुम्हारे मुंह के ऊपर ऐसा बोलने मजबूर कर दिया कि तुम आज पाकिस्तान में तो मौजूद हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं कोई सुन सकता। तुम ये कहते थे कि दुनिया में और लोगों को अस्सलाम वालेकुम अरशद शरीफ का सलाम। अब हमारे पास वो तलू नहीं होगी सुबह, जिस सुबह में हमें सुबह अरशद शरीफ का सलाम मिलता था, हम उस सलाम को तरसेंगे। अरशद शरीफ, हम शर्मिंदा हैं, हम तेरी रूह से शर्मिंदा हैं। अरशद शरीफ, रोजे क़यामत पूरी 22 करोड़ आवाम को माफ कर देना। किसी कुछ बंदों की वजह से अगर तुम पे जुल्म हुआ है तो जब तक तेरे कातिल जिंदा रहेंगे हम शर्मिंदा रहेंगे। अरशद शरीफ, माफ कर देना हम सबको। जी आप देख सकते हैं कि हराम करना मैं आप कहेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं 8 बजे के करीब पहुँचे। हम अपना फाइनल हम उनकी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम काफ़ी बेकार इससे पहले कि किसी काम पे मारे जाए, चंद किसी बात की जरूरत मारे जाए, तो हम लोगों को भी अपनी करके उनको मार के कर पड़ा नहीं है। जी आप लोगों के जज्बात के साथ देख सकते हैं, मुल्क के हर शहर से लोग यहाँ पर आए हैं अपने प्यारे अरशद शरीफ का दीदार कर रहे हैं, उनको शायान शान तरीके से उनके जस्ते खाकी से इस्तकबाल कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग सिविल सोसाइटी लाहौर से आए हैं और हम हर माँ से शर्मिंदा है जो अपने बेटों को शहीद करवा देती है इस राह हक के लिए, सच के लिए। माएँ अपने बेटों को हज की और हज के लिए तनकीद देती है, उनको हज के लिए सबक देती है और हम उनको कुर्बान होने के लिए देते हैं। मेरा आज सवाल अपने इदारों से है, मेरा आज सवाल हर उस पाकिस्तान के इदारे से है कि क्या माएँ इसलिए अपने बेटों को लाइव चल रहा है, क्या माएँ पीछे से आ जाए, पीछे से आ जाए, पीछे से इस तरफ से आ जाए, बात ना करें, इधर से चले जाए ना, लाइव चल रहा है। अगर वो सच के लिए तरकीब देती है तो कम से कम हमारे बेटों के साथ ये नहीं होना चाहिए। हमारे बेटे मजबूती से खड़े हैं तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जी हर किसी का यही कहना है कि अरशद शरीफ ने जो है हक व सक की बात की और उसकी सदा उसको मिली, और सबका यही कहना है कि हम अपने बच्चों को क्या सबक देंगे कि क्या झूठ बोले। हम अरशद शरीफ की तरह जो है अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अपने प्यारे अरशद शरीफ के चाहने वाले यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पर मौजूद है। रात के इस शहर भी लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर जा चुकी है लेकिन लोग जो है अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अपने प्यारे अरशद शरीफ के यहाँ पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हक सच के साथ जो है ये कितने अरशद शरीफ मारेंगे, जितने एक अरशद शरीफ मारा कई और अरशद शरीफ जो है और पैदा हो चुके हैं और हक व सच की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता और ये आवाज़ जो है चलती रहेगी और कई और अरशद शरीफ जो है अब पैदा हो चुके हैं। तो उनके हर किसी का यही कहना है, ख़वातीन हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सिविल सोसाइटी के जो भी नौजवान हो, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरीके से हर आंख अशबार है, दिल नम है और जो है अपने मुख्तलिफ तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अपने प्यारे अरशद शरीफ को चाहने वाले अब भी इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी अच्छा भाई आपको रास्ता शॉर्ट हो गया, ये रास्ता क्लियर कर दिया यार। आप यहाँ पर होता है, हम बोल देते हैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही है खत्म मैयत के साथ ये सोचा भी नहीं, क्या तो अरशद शरीफ शहीद सवाल भी नहीं करेगा, अब क्या होगा मैयत के साथ इस तरह? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले कहा गया जी कि मीडिया नहीं आ सकता, राना सनाउल्लाह खुद जाएंगे, वो डेड बॉडी को रिसीव करेंगे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे, आप लोग साथ ही थे, तो पहले कहा गया जी कि आप इस टर्मिनल पे आ जाएं कारगिल के ऊपर। तो वहाँ से काफ़ी देर वहाँ खड़ा किया गया, कुछ लोगों को वहाँ अंदर वहाँ से इंटर कर दिया और फिर कहा जी कि नहीं आप वापस दूसरे टर्मिनल पे चले जाएं। और जब वहाँ गए तो वहाँ बताया गया जी कि नहीं आप वापस वहीं चले जाएं
और फिर कुछ लोग वहाँ गए, आपको पता है वहाँ इतना रश होता है, मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही होती, बहुत दूर था यू टर्न, वापस उधर पहुँचे तो उधर से फिर उन्होंने पता चला ये किसी तीसरे रास्ते से निकाल दिया। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ शहरयार अफरीदी साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी सायरन बजा कर आगे गई, उन्होंने कहा इसमें है, तो मैं फवाद चौधरी, शहरयार अफरीदी और कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, वो पिम्स चली, एम्बुलेंस सायरन बजा कर गई और कहा इसको फॉलो करें, और वो पिम्स चली गई। और जब वहाँ पहुँचे एक एम्बुलेंस थी केपीके की, गवर्नमेंट की, उसके ऊपर लिखा हुआ था, और दूसरी एम्बुलेंस जो पीछे दाखिल की गई वो पिम्स हॉस्पिटल की थी, और इन्होंने चकमा ऐसे दिया कि पहले एक एम्बुलेंस को इधर से इंटर करवा दिया और दूसरी एम्बुलेंस फिर वहाँ भेज दी, और वहाँ सब लोग उसके पीछे लगा दिया दूसरी एम्बुलेंस के, और जो पूरा प्रोटोकॉल था वो भी खाली एम्बुलेंस के पीछे लगा दिया, और लोगों को जो है वो दूसरे एम्बुलेंस से साहब मुझे कह रहे थे कि मैं पिम्स में हूँ तो यहाँ तो हलचल नजर नहीं आ रही, लोग नजर नहीं आ रहे, इस तरह जमगा दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? यार ये तो हैरान कन बात है, यही तो हैरान कन बात है ना, शायद तो उनको ये खौफ था कि यार उनकी मैं मतलब वो जिस हद तक वो गिरे हुए हैं मैं वो एज्यूम भी नहीं कर सकता, मैं वो कह नहीं सकता जो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की भी हरकत हो सकती है एक मैयत के साथ जो उसके गमज़दा फैमिली साथ थी, हम लोग तो थे ही थे, उनकी फैमिली साथ थी, वो बच्चे छोटे छोटे साथ थे, और फिर चले इतनी सी किसी को शर्म आई कि यार उनकी फैमिली को उन्होंने इंटर कर दिया और उनकी फैमिली को उसी एम्बुलेंस में उन्होंने उन तक पहुँचाया, लेकिन बाकी सारे लोगों को उन्होंने घुमा दिया। हमें उस वक्त वहाँ समझ आ गई थी, मैंने काशिफ नवाज़ी साहब को कहा सर ये चकमा दे रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही थी, बड़े बड़े लोग ग्लासरा साहब जैसे लोग वो सारे एक तरफ खड़े रहे और वो मैयत को उन्होंने ऐसे ही दूसरे रास्ते से निकाल दिया। काफ़ी सारे मनाज़र देख रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सब खाना मिल गया तो लोगों को चाहिए, किसी इतनी हॉस्पिटल इतने लोगों को तो नहीं एक्सेस दे सकता, फैमिली है और बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों को खुद ये जिद नहीं करनी चाहिए, लोगों को ये जिद नहीं करनी चाहिए। आप भी यही अपील करें लोगों को, लोग डिस्पर्स हो जाए, और मैं भी हॉस्पिटल है कितने और मरीज़ आ रहे होंगे, किसी की इमरजेंसी होगी, क्योंकि जिस तरह रश लगा हुआ। मुझे ये बताएं, अच्छा शरीफ के साथ आप ये एक इस पे अगर ना बात करें तो मैं इस पे बात ना करें तो यार ये तरह लोगों से ये अपील करें कि लोग रास्ता ना ब्लॉक करें, अभी ये जिस तरह से लोगों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ ये ठीक चीज़ नहीं है, और इसको याद बता दें, बहुत तकलीफ दे चैप्टर था। नाज़रीन आप देख सकते हैं अच्छा शरीफ से बहुत भी यहाँ पहुँचे, क्या जज्बात है, कह रहे हैं कि इस पर बात ना करें। आप क्या कहेंगे कि रात की इस तरह से मिलने के लिए आए? वाइस बंदा सच बोल रहा है, नाम लेके बोल रहा है, वो उसने चीफ जस्टिस को दिखा सबको लेके बनाया कि ये मसला है, लेकिन उससे किसी ने सुनवाई नहीं की। अब कहते हैं बेंच बना दें, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कोई नहीं, अब आवाम कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। जी इनका ये कहना आवाम कार्रवाई करेगी, आप क्या कहेंगे कि बच्चे को लेके आप आए, छोटा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? हम लाहौर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, जिस टाइम हमें पता चला कि ये सानिया हो गया है, तो सुबह सो के उठा, मैंने देखा, यकीन करें 1 घंटा तो इस तरह की कैफियत थी कि हमें जो है ना कुछ करने को दिल ही नहीं किया कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। और अब हम लाहौर से निकले, हम आए कि एक बार दीदार कर लें, आखिरी दीदार हो जाए अरशद शरीफ साहब का, तो बस इस वजह से जो है ना। जी आप क्या कहेंगे कि रात किस पैर आप मौजूद हैं? मैं यहाँ रावलपिंडी से हूँ, और मेरा पैगाम जो है वो हुक्मरानों तक है कि मेहरबानी करके सिर्फ 8-10 सच्चे सहाफ़ी रह गए हैं, उनको भी आप मरवा दें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी तो लिफाफे वाले हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह के सच्चे बंदे सिर्फ 8-10 हैं, उनको भी आप मरवा दें ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फिरौन पैदा नहीं किया जिसके लिए मूसा पैदा ना किया हो, तो लिहाजा आपके लिए भी अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बनाएगा कि अल्लाह ताला आपको इबरत का निशान बनाएगा इंशाअल्लाह। यही कहना है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान बनाया था, इम्पोर्टेड हुकूमत हर बंदे को, हर किसी के साथ
अफसोस है कि ये दुनिया में जितनी भी जगह पाकिस्तान में काम करना ये गलत है और इम्पोर्टेड होना। जी हर कोई अपने जज्बात का इजहार मुख्तलिफ तरीके से कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ रात के इस पैर शहीद आज़म अरशद शरीफ साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आए और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का जिगर छलनी है, हर आंख अश्कबार है और दूर दराज एरियाज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने शहीद आज़म को वेलकम करने के लिए। और एक बात जो यहाँ पे की जा रही है कि बड़े कमीशन बने, अरशद शरीफ नेशनल मर्टराइड है, वो कौमी शहीद है, वो शहीद आज़म है। तो आपको मैं बताऊँ कि इस नेशनल लेवल पे पहले सेक्रीफाइस भी नहीं हुई थी। वो वाहिद पाकिस्तान का साफ़ी है जिसने एक नेशनल लेवल की सेक्रीफाइस की और उसने अपने कलम को नहीं बेचा, अपने ज़मीर पे लब्बाई कहा और यजीदियत के खिलाफ डट गया और वही फ़लसफ़ा शब्बीरी के पैगाम पे अमल पैरा होके उसने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को जगा दिया। ये अरशद शरीफ का मर्डर नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का मर्डर है और मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम पर उम्मीद है हम इनसे अपना बदला लेंगे और छीन के लेंगे। हर किसी का यही कहना है कि हम अरशद शरीफ ने पूरी कौम को जगा दिया, क्या कहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो हम लाहौर से आए, जब हमें यह खबर मिली है आप यकीन करें इस तरह का जिस तरह हमारा भी अपना चला हमारा मुझे ऐसा लगा जिस तरह मेरा बहुत लगा। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि यार अगर ये आपने मौत का खेल शुरू कर लिया ना तो हम तैयार हैं, पूरी कौम तैयार है। तुम लोग नंबर वाइज मारते रहो, हमारी बारी भी आएगी, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, किसी सूरत भी हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, सच बोलेंगे, वही कहेंगे जो पहले कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम बाज नहीं आएंगे। सिर्फ दो चैनल में दिखा रहे हैं, यही बताया सच कहेंगे और हक शरीफ कहता था उसी तरह हम तो बात करेंगे, झुकेंगे नहीं, सिर्फ एक खुदा के आगे झुकेंगे, बाकी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हर आंख अश्कवार है, हर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हर आंख हम दिखाई देंगे, हर यही कह रहे हैं हमारा अपना फोन होने का लोगों की मोहब्बत के दाम इधर हो जाए, आप सारे इधर हो जाए ना, या वो सही है। आप लोग कैंडी रास्ता बना दो, थोड़ा सा साइडों पे खड़े होते हैं। आप लोग यहाँ पे खड़े होते हो, सारे हमारे पास आते हैं, जवाब दे हम होते हैं। साइड्स पे खड़े हो जाओ, यार साइड्स पे खड़े हो जाओ। देखो आप लोग यहाँ पे रश बनाते हो, ये अदारे हमारे पास आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रास्ता बना दो। हमने कभी रहकर नहीं जाएगी, पाकिस्तान ऐसे ही लोग ऐसे कायम है और शफी साहब ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह उनके खून से इनकलाब आएगा। और जो हुक्मरान हैं अब इस जंग में उतर ही आए हैं कि एक एक बंदे को चुन के मारा जाए जो सच और हक की बात करेगा। तो अगर ये जंग स्टार्ट कर दी गई है तो इंशाल्लाह ये जंग इन्होंने शुरू की है और खत्म हम करेंगे। कि जितने बंदे मारते जाएँ मरवाने के लिए तैयार हैं, ये कंधे जो हैं लाशें उठाने से नहीं थकेंगे। 2-4 लोगों की वजह से पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जा रहा है और ये हुक्मरान जो हमसे मुसल्लत किए गए इनके थ्रू जो पाकिस्तान का इमेज दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ अरशद शरीफ साहब ने एक कुर्बानी देकर पाकिस्तान का नाम तो से बुलंद कर दिया है। जी हर किसी का यही कहना है कि अरशद शरीफ ने कुर्बानी तो दी लेकिन उसने जो पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कई और अरशद शरीफ जो है ज़िंदा हो चुके हैं और रात के इस पैर आप लोगों से उनसे इज़हार मोहब्बत का इज़हार आप देख सकते हैं कि हर कोई मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। उनके जस्ते खाकी जो है अंदर जा चुके हैं, अस्पताल में जो है मार्ची में जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाने को तैयार नहीं हैं। लोगों को बार बार जो है कहा जा रहा है, इसके सिक्योरिटी अमले की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ से चले जाएँ, सिक्योरिटी मसाइल भी हैं हॉस्पिटल के बाहर भी, लेकिन लोग जो है जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों ताकि एक मैसेज दिया जा सके, ये होगा। सॉरी मैं खबर भी कंफर्म कर लूँ। मुलाकात की वो भी बताई, उन्होंने कहा कि वायरल है तस्वीर शहीद की वो जान वायरल करवाई गई ताकि लोग उसको समझ सकें। लेकिन आप देख सकते हैं लोग यहाँ रात में जमा है
करेंगे।